आज के एपिसोड में हम किसी ऑर्डिनरी बच्ची को नहीं मिलने वाले हैं। मेरे सामने बैठी है 4 साल की फोर्स ऑफ नेचर समार्था महालक्ष्मी, और इस उम्र तक वो उतने रिकॉर्ड्स जीत चुकी है जितने लोग पूरी जिंदगी में नहीं जीत पाते। शी इज शार्प, क्यूरियस, अनबिलीवेबली फोकस्ड, एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ अ प्रोडिजी। लेकिन ये सिर्फ एक टैलेंटेड बच्ची की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस मेंटर की, उस माँ की जिन्होंने समार्था के पोटेंशियल को पहचाना, शेप किया और हर दिन डिसिप्लिन से गाइड किया। अगर एक छोटी सी बच्ची इतना शाइन कर सकती है तो उसके पीछे एक माँ का बिलीफ और कंसिस्टेंसी होता है, एंड दैट डिजर्व्स इक्वल स्पॉटलाइट। और हम शुरुआत कर रहे हैं एक धमाकेदार सेगमेंट से, 1 minute rapid fire quiz. Who wrote the national anthem? Rabindranath Tagore. Who designed national flag? Tingri Venkaya. Which state is known as the fruit of bowl? Himachal Pradesh. Father of mathematics? Archimedes. Father of education? Savitribai Phule. And name the 4 Vedas. Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Satarka Vedas. What was the original name of Mahabharata? Jay Samhita. Upanishads are the book on Philosophy. Swaraj is my birthright. I shall have it. Who said this? Lokmanya Tilak. The founder of Dharma Shastra was? Bodhayana. Name the Puranas. Brahma Purana, Padma Purana, Vishnu Purana, Shiva Purana, Danda Vaira Purana, Linga Purana, Vara Purana, Skanda Purana, Manta Purana, Kulma Purana, Mastya Purana, Padmata Purana, Brahma Purana. The word Satyameva Jayate was taken from? Mandaka Upanishad. What is the state song of Maharashtra? Jai Maharashtra Maza. Who was the architect of Chhatrapati Shivaji Terminus railway station? Frederick Williams Kevin. Who is known as the mother of orphans? Sindhutai Sabkar. Which country shares the border with India? Pakistan, China, Bhutan, Afghanistan, Myanmar, Nepal, Bangladesh. Wow. National Youth Day is celebrated the birthday of Swami Vivekananda. the ruler who created Maratha kingdom. Chhatrapati Shivaji Maharaj. Which leader said, "Give me blood, I will give you freedom"? नेताजी सुभाष चंद्र बोस. समार्था, तुम्हें किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है? इफ मम्मी ऑर्डर देती है, 5 बार बोलती हूँ, मम्मी क्रैप करती है, मैं हैप्पी होती हूँ. अरे वाह, वेरी नाइस। समार्था, आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हो? फ्रेश होती हूँ, पूजा करती हूँ, सॉन्ग बोलती हूँ, स्पोर्ट जाती हूँ. कौन सी स्पोर्ट्स जाते हो? क्रिकेट, एथलेटिक्स. ओके, आप कितने बजे उठते हो? 5 o'clock. 5 o'clock, so early in the morning. And who's your teacher? Sports teacher? स्पोर्ट्स स्टडीज जॉन सर, मंदर सर, शैलेश सर, आवत सर. आपको मजा आता है स्पोर्ट्स खेलने में? फिर आप स्पोर्ट्स से आते हो घर पे, फिर क्या करते हो? खाना खाती हूँ, सोती हूँ. सोते हो? Rest. अच्छा, और फिर उठ के क्या करते हो? उठ के स्कूल जाती हूँ. कौन सी स्कूल जाते हो? SSI स्कूल. वाव, यू लाइक टू गो टू स्कूल? इट्स फन। और फिर आप मम्मा के क्लास जाते हो? उधर क्या करते हो मम्मा के क्लास जाके? ड्राइंग. यू हैव टू स्टडी इन क्लास, नो? Yes. She helps others a lot. वेरी नाइस। तो समार्था क्लास में आपके साथ आती है तो इज शी हेल्पफुल? ऑब्जर्व करती है कि क्या करती है? She is very, very, very helpful. All my parents and my students says me she is the next teacher, because if a child is not doing well, a small children, especially the nursery one or the playgroup students, she will go to them, she will sit, she will hold hands and she will teach how to write. वाव, वेरी And नाइस। she will explain what it is. She will teach the picture words and all, and then she will ask me, "Mama, I am right? Am I teaching in a good way? Is it okay?" And if anybody is misbehaving, she keeps complete observation like a monitor. And she Lovely. keeps giving me complaint, "Mama, see, you are busy. He is doing like this, she is doing like this." And then I get to know the things sometimes. एग्जैक्टली. Wow. बस वेरी नाइस। समार्था, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? जंक फूड और हेल्दी फूड? हेल्दी फूड. वाओ, विच इज योर At home फेवरेट only, फूड जो मम्मा बनाती दाल है? राइस. दाल राइस। योर फेवरेट फ्रूट? ऑरेंज. वाओ, इट्स जूसी, नो? मैं लॉलीपॉप सब नहीं खाती हूँ. वेरी गुड गर्ल। हाँ, जो अगर फ्रूट्स का कुछ मेड है अच्छा। एंड ऑर्गेनिक, मतलब जो हेल्थ के लिए इफेक्ट नहीं है,
That she has sometimes. At home only. If she needs any ice cream also, I make it at home only. Everything is home. Everything is homemade. Even she wants a roll or a Frankie, I'll make वो नहीं रही है अभी sure तक। at home only I cook. Pizza she wants. Then what how mama makes pizza? With cheese and with roti. Roti and And cheese. vegetables? No. She likes that cheese ka pizza. at Okay, home but only. roti is the I'm best. eating vegetables every day. Very She nice, eats Samartha. vegetables. And my muscle is very strong. Show me your muscle. Oh wow. Very nice. मैम 4 साल की बच्ची 5 बजे उठती है, स्पोर्ट्स जाती है, आपको एकेडमी में हेल्प करती है. ये रूटीन कैसे बना उसका? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कभी प्लान नहीं किया था. ये सब नेचुरली होता गया. आई वॉज गोइंग विद द फ्लो. मेरा जो शेड्यूल और रूटीन है वो उसमें आ गया है. शी इज़ कॉपिंग मी, टोटली शी इज़ कॉपिंग मी. ऐसा हुआ कि अगर मैं जल्दी उठती हूँ, पहले मैं उठती हूँ और फिर मेरे जो काम करने की आवाज़ से फिर उसे 2-3 बार आवाज़ दे दिया, बस वो उठकर रेडी होती है. बिकॉज शी नोज़ हर शेड्यूल. राइट. और पहले तो ऐसे क्यूरियोसिटी था कि हाउ शी सो स्मॉल एंड सिंस द टाइम शी केम इनटू दिस वर्ल्ड वो यही टाइम टेबल एंड शेड्यूल मैं फॉलो कर रही थी. एक्चुअली आई शुड से थैंकफुल दैट शी इज़ मैनेजिंग द टाइम. वाओ. शी इज़ टीचिंग मी दैट व्हाट इज़ अ टाइम मैनेजमेंट. तो बाद में क्यूरियोसिटी के साथ साथ ये पूरी हैबिचुअल हो गई, आदत बन गई. तो जो मैं करती हूँ वही वो चीज़ें वो फॉलो करने की सोचती है. आज तक उसने कभी पिज्ज़ा भी टेस्ट नहीं किया? नो, एट होम ओनली वी प्रिपेयर एंड आई गिव. वाओ, दैट्स लवली. बिकॉज यू नो वॉट, आई डोंट वॉन्ट एक एडिक्शन है ना, उसका हेल्थ वाइज भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड आई नो दैट सी किसी के पास टाइम नहीं है, दे आर सो बिजी, बट एंड ऑफ द डे they are copying us and it's our responsibility. They are our child, our blood. So मैं कितनी भी busy रहूँ, occupied रहूँ, I make sure that everything goes as per the timetable and schedule. I have prepared in my life a time management. मैं वही चीज़ें follow कर रही हूँ. Superb. That's in fact a very good inspiration for all of us. आपको कौन से पॉइंट पे ये बिलीव हुआ कि उसकी क्यूरियोसिटी सिर्फ हॉबी नहीं पर उसकी पहचान बन रही है? जब वो 1.5 महीने की हो गई थी तब से लोग, बच्चे टॉयज़ से खेलते हैं, कार्टून्स देखते हैं, गेमिंग में रहते हैं. बच्चे आजकल इतना एडवांस हो गए कि उनको जैसे ही वो बाहर आते हैं दुनिया में, उनको स्क्रीन देना चालू कर देते हैं जस्ट टू कीप देम बिजी. करेक्ट. बट समर्था वॉज सच चाइल्ड, अ ब्लेस्ड चाइल्ड दैट उसे सिर्फ बुक्स चाहिए, पेन पेंसिल चाहिए, क्रेयॉन्स चाहिए. कितने भी टॉयज में रखती थी उसके पास, शी नेवर यूज टू प्ले विद देम, शी ओनली यूज टू टच द बुक. और ये जो हैबिचुअल है ना, कंटिन्यू उसके अभी तक उसका वही होते आया है. Even for the toys and all, only for 5 minutes or 10 minutes she will have that love for that thing. Afterwards again she will herself, she'll take the book and she will sit. बाकी के बच्चे वो टाइम पे उसके उम्र में बाकी के चीज़ें जैसे क्या कार्टून्स बोलो, कोई एक एनिमेटेड थिंग्स बोलो, गेमिंग्स बोलो, वीडियो गेम बोलो, एक मोबाइल होता है. बच्चे तो छोटे टाइम पे ही 4-5 महीने में ऑन ऑफ के बटन भी जानते थे. बट शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट द स्क्रीन, ओनली शी नोज इज TV. Okay. And she knows the name, what is laptop is and what we does, because I give her a quality teaching. Also the advantage and the disadvantage. So only the TV ka screen she knows, and most the time she prefer playing a physical thing, activity. Okay. घर पर ही वो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स करती है, एक्सरसाइज करती रहेगी. देन यू नो स्पेस का इशू के वजह से देन आई टेक हर टू पार्क. मैंने उसे कोई बड़े जगह दिखाया नहीं है अभी तक. एंड समटाइम आई फील कि येस, बाकी के बच्चे देखो सब कैसे जाते हैं, दे आर एन्जॉइंग, द पेरेंट्स आर डिस्कसिंग अमंग देमसेल्फ, द चिल्ड्रंस आर सेइंग मी टीचर आई वेंट टू दिस दैट प्लेस. बट कभी कभी मन में एक टाइम में ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी बच्ची भी है, वो करना चाहिए था. बट उसके बाद मुझे लगता है ये चीज़ों से एक डिसएडवांटेज
वो ग्राफ्स करने से अच्छा है, उसे जो पसंद है वही चीज़ें वो करते जा रही है. When she wanted, she will of course tell me. Till date, she never demanded me anything. Lovely. Very nice. What is the fine line between guidance and control? और आपको कैसे पता चलता है कि आप लाइन के उस साइड हो, गाइडेंस के साइड पे? जब मैं कुछ बोलती हूँ और समर्था जब खुश होती है तो मैं समझ जाती हूँ कि ये एक गाइडेंस है. जब मैं कुछ बोलती हूँ उसके आंखें भर आती है, वो अपसेट हो जाती है, ऐसे ही अगर चेहरा उसका डाउन रहा तो समझ जाने का कि दिस इज़ अ कंट्रोल. तो आप वो टाइम पे आप स्टॉप कर देते हो? मैं अपने आप को स्टॉप कर देती हूँ. देन आई ट्राई टू कन्विंस हर इन अ गुड वे एंड देन फिर वो समझ लेती है. 4 साल की बच्ची, इतनी मेच्योरिटी आपने कभी एक्सपेक्ट की थी उससे? नहीं, मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था. शी इज़ आई वुड से शी इज़ वेरी मैच्योर्ड इन अंडरस्टैंडिंग. व्हेन इट कम्स अप टू इमोशनल सेंसिटिव कोई चीज़ों को लेकर शी लिसन्स टू मी दैट यू नो. देखो बच्चे हैं, खेल खुद में तो रहते ही है और खेलना तो है, बट वो खेलते खेलते भी जो मेरी बातें वो ध्यान देती है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. दैट्स व्हाट आई वांट. आई थिंक वैसा होता है ना, बच्चे जब इतने छोटे होते थे वो ऑब्जर्व खेलते एवरीथिंग, वो उथर पुथर यहाँ वहाँ वो तो करते ही रहेंगे बच्चे, तभी तो नॉर्मल है. अगर कोई बच्चे नहीं शैतानी करती है, एक ही कोने में बैठे पड़े, तब उसको बोलते हैं कि नहीं, देयर इज समथिंग एंड मेजर इशू. करेक्ट. बट बच्चे है, बट इतना होने के बावजूद भी शी ट्राइज टू लिसन टू मोस्ट ऑफ माई थिंग्स एंड देन क्रॉस चेक करने के लिए इफ आई आस्क कर ना, टेल मी व्हाट आई सेड, नाउ यू आर प्लेइंग, where your attention was towards my words and sentences. Then she says, yes mama, you said me this. Wow. I heard it. This is actually observing, listening, everything. Yes. हम समर्था भी 4 साल की है, उसके पास कितने रिकॉर्ड्स हैं? अभी तक उसके पास 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड है एंड उसके अलावा अवार्ड्स तो बहुत है. रिकॉर्ड्स कौन से हैं? रिकॉर्ड्स इंडियाज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, PITI है, देन इन्फ्लुएंसर बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो 3 बार आई बिकॉज एज शी वॉज कीप ऑन सेइंग द मोर मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर. सो विद दैट पिच शी हैज़ गॉन देयर फॉर 3 times. एंड देन यूनिवर्सल फोरम रिकॉर्ड वेयर she came into that maximum answers a youngest child has given till now. Wow. That time. इतने रिकॉर्ड्स उसने जीते हैं इन अ वेरी यंग एज, पर उसकी जो जर्नी है वो संभालते संभालते एज अ मदर, एज अ मेंटोर, आपने क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं? ये क्वेश्चन विल मेक मी ऑलमोस्ट टू क्राई, लाइक यू नो, एक टीयर्स आ जाएगा ऐसे. सैक्रिफाइस के साथ साथ एक एक्सचेंज भी था. समर्था जब 9 दिन की थी, मैं मेरे क्लास में वापस जाती थी. आई स्टार्टेड वर्किंग बैक 9 days with that deep stitches and cuts and it was very painful even to walk because you know मुझे ऐसे था कि I have to do something for my child and मेरे शोल्डर पे बहुत बच्चों का एग्ज़ाम्स का भी जिम्मेदारी थी, तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना था. मुझे अपने से ज़्यादा बच्चों की चिंता थी, उनका फ्यूचर, उनका स्टडीज़. सो 9 days से ही मैंने ट्रैवल करना चालू किया एंड विद द वॉकिंग पेन, विद द टीचिंग विद दैट वॉइस, इट वॉज अ मैनी कॉम्प्लिकेशंस. यू माइट बी नोइंग हार्मोनल चेंजेस, देन स्ट्रेस लेवल, मेरा नींद कम्प्लीटली चला गया, मेरा आराम चले गया, मेरा खाना पीना जो हम सोचते हैं ना कभी ये खाना तो भी पसंद करते, वो खाना तो भी पसंद करते, पहले ध्यान आता है अपनी बच्ची का, तो वो भी सैक्रिफाइस हो गया. एक नॉर्मल चाय होता था लाइफ में, वो भी सैक्रिफाइस हो गया. इवेंचुअली फिर ऐसा होता गया कि समर्था दिन बर दिन मेरे क्लास में घुल मिल गई. उसे मैं लेकर उसे पढ़ाती थी लैब में लेकर. एंड जब मुझे क्लास के लिए बाहर जाना पड़ता था तो घर से कॉल आता था कि द बेबी इज़ क्राइंग फॉर द मिल्क. वहाँ से फिर से दौड़े दौड़े यहाँ पर आती थी, उसको दूध पिलाती थी, यहाँ से दौड़े दौड़े फिर से क्लास में जाती थी, फिर से दौड़े दौड़े आती थी, जाती थी. इट वॉज कम्प्लीटली
you can understand the painful journey. And then वो क्लास में उसका क्लास ही अपना हो गया बच्चों के साथ, बच्चों की पढ़ाई, उनकी एनर्जी, स्टेज, उसका सब कुछ एक घर बन गया. वो एक्चुअली मैं बोलूँ, वो बच्चे वो टाइम पे कोई रोना धोना करते हैं. आई विल टेल यू, मेरे ये पूरे जर्नी में जब तक उसको मैच्योरिटी नहीं आई ना, शी वॉज नॉट अ हल्ला वाला बच्चा. आई वॉज थिंकिंग दैट शी सो साइलेंट, शी सो साइलेंट. बाद में उसने उसका रूप दिखा दिया 5वां महीने के बाद. शी वॉज कम्प्लीटली लाइक, शी स्टार्टेड टॉकिंग. वॉट एवर आई टीच द चिल्ड्रेन, शी यूज टू आंसर दैट क्वेश्चन इन अ वेरी फम्बलिंग वे. At which month you said? 5th month. 3 months से ही शी यूज टू डांस. पैर में खड़े रहने की कोशिश करती थी, पोएम्स के रिदम में उसके हाथ पैर हिलाती थी. 5th month से बहुत ज़्यादा हो गया था. देन आई केम टू नो दैट शी इज़ फीलिंग वेरी मच इंटरेस्ट, कि ये एक स्पार्क है. फील होता है ना, ये एक स्पार्क है कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है. बच्चे नॉर्मली 2.5 साल में देते उसे लिखना वगैरह, बट ये पैदाशी से ही उसे वो पकड़ने की आदत है, पेन. एंड फिर मुझे अच्छा लगा कि जब बच्चे, बाकी के बच्चे उसमें रहते थे, बट वो मैप में देखती थी, वेयर इज़ व्हाट इज़ जम्मू कश्मीर, वेयर इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, एंड शी यूज्ड टू क्वेश्चन मी. और वो इतना मैंने फिर उसे पैम्परिंग करा के उसके स्पीच में वर्क किया कि मेरे पूरे एफर्ट्स, बोलते हैं ना, इतने पूरे जर्नी और एफर्ट्स, it got shine. Right. Because in a very young time, she has started speaking. She started saying much more tough words and sentences. And इस जर्नी में, टफ में, पेनफुल में, खुद तो मैं अपने आप को तो भूल ही गई थी. I had completely, my weight had got dropped down, and doctor was saying that this is not a good sign. You are putting lot of exertion, but at the same times your health also matters. But with the God's blessing and divine, मुझे strength बहुत देते गए. उम्मीद मैंने हारा नहीं. जब मैं उसे देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि आई एम complete. I'm sure you are very proud of her right now, looking at her achievements. I am really proud, and sometimes I drop a tear also by saying that, you know, जो हमें अपना लाइफ में नहीं मिला है, कोई पुश करने वाला नहीं था, but maybe God has given me this opportunity that you can change the people thinking. Totally. You can change the people thinking, and now many people tell me that कि मैडम she is the role model, because हम उसे देखकर सीखते हैं और हमारे बच्चे उसे देखकर सीखते हैं. I feel so happy that मैं तो चाहती हूँ कि हर एक बच्चा इसके जैसे ही रहे, समर्था के जैसे. Very proud moment for you as a mother and you as a mentor for Samartha, right? Yes, of course. और mentorship का मतलब आपके लिए क्या है? मेंटरशिप का मतलब मैं हूँ, ये जो वर्ड है, अगर बच्चा जब नहीं बोल पाता, एंड गाइडेंस से ज़्यादा उनको प्रेजेंस की ज़रूरत होती है. प्रेजेंस प्लेज अ बिगेस्ट रोल इन ईच पर्सन लाइफ. मेंटर, आई अंडरस्टैंड मेंटर एक गुरु, इनडायरेक्टली एक वर्ड जो होता है उसके लिए गुरु. गुरु चाहे कितना भी, गुरु के लिए कोई अंत नहीं है. गुरु इज़ लाइक, यू नो व्हाट वी से, इट इज़ लाइक अ ब्रह्मांड. गुरु चीज़, उसका कोई उम्र नहीं है, कुछ नहीं है, एंड देयर इज़ नो एज ऑल्सो. बट वॉट इज़ द मैंडेटरी इज़ द प्रेजेंस. द प्रेजेंस शुड बी देयर. अगर प्रेजेंस ही नहीं है, then how you expect a child have to you know that word, उसे वो क्या बोलते हैं, आप कैसे समझाओगे? The presence plays a bigger role. Okay, for you that is mentorship. Yes, mentorship. Super. आपके लिए सक्सेस क्या है? मेडल्स या वो मोमेंट जब समार्था ने खुद से कुछ सीखा है? मेडल्स मेरे लिए एक सेकेंडरी चीज़ है, बट मेरे लिए जो फर्स्ट चीज़ें, जो मेरे लिए मेडल है, वो ये है जब समर्था कुछ नहीं कर पाती है, या वो
कभी कुछ एक हार मान जाती है, उस टाइम पे जब मैं बोलती हूँ कि रिलैक्स, दैट्स ओके, बट मुझे उससे जवाब क्या आता है, मम्मा आई कैन ट्राई वन मोर टाइम फॉर यू, मम्मा आई कैन ट्राई वन मोर टाइम फॉर यू, जस्ट गिव मी वन चांस। वो खुद से वो बोलती है, ये मुझे बोलना नहीं पड़ता। तो वो इट इज़ अ बिगेस्ट मेडल, बिकॉज एट दिस एज ओनली शी नोज दैट वी शुड कीप ट्राइंग, Wow. वी शुड नॉट लूज द होप। ऐसा कुछ नहीं है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। And that is so rewarding. Impossible means I am possible. Right. So this is my biggest medal, I will say. Lovely. And she is the only one medal, my inspiration. She is my role model and she has taught me many things. पहले तो इसने मुझे जो सिखाया है वो है पेशेंस रहना मम्मी। और सच में जब भी मैं ऐसे सोचती हूँ कि व्हेन माई बर्स्ट होने का चांसेस है, शी सेज मी साइलेंस प्लीज, Oh. मम्मा साइलेंस प्लीज, काम डाउन, रिलैक्स, देन आई फील Wow. टू स्माइल एंड वाव, और मुझे वो हंसी आती है, फिर मेरी हंसी छूटती है।